من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین. آج 16 مارچ 2025 بروز اتوار 2:10 ہم لوگ باری بنگلہ آفس میں موجود ہیں، اور ہمارے اکٹھا ہونے کا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. آج اس کے لیے کانوین کی ذمہ داری مجھے ملی تھی، اور اس کے بعد جو ہمارا پہلا پروگرام ہوتا ہے درس قرآن کا، اس کی ذمہ داری برادر ظفر سر کو ملی ہے. ان کے پاس 15 منٹ کا وقت ہوگا. اس کے بعد دوسرا پروگرام درس حدیث کا ہے جس کی ذمہ داری برادر شیان کو ملی ہے. ان کے پاس بھی 15 منٹ کا وقت ہوگا. اور ایک سوشل ٹاپک ہے، موضوع ایک جنرل ڈسکشن ہے، اور اس کے بعد دعا ہو کے یہ پروگرام انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. تو سب سے پہلے میں برادر ظفر سر کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقرر وقت میں اپنے پروگرام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع جو ہم سبھی لوگ اتوار کو ظہر کے بعد یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں، اور پروگرام کی شروعات جو درس قرآن سے ہوتی ہے، تو اس پروگرام میں جو درس قرآن کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اور میرے پاس 15 منٹ کا وقت ہے. تو میں سورہ بقرہ کے 153 اور 154 نمبر کی تفسیر و تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کس کو یہ کر رہا ہے؟ اے ایمان والوں. یہاں پر ایسا نہیں کہا گیا اے نماز پڑھنے والوں، اے روزہ رکھنے والوں، اے حج کرنے والوں. یہاں پر کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ایمان والوں سے. اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ایمان والوں، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایمان یعنی کہ اللہ کی کہی گئی باتوں کو ماننا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے حکم دیے ہیں، اس پر یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور جس انسان کے پاس انسان اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سب سے اول پرائورٹی دی ہے. اگر ایمان ہے تبھی آپ کی نماز ہے، تبھی آپ کا روزہ ہے، تبھی آپ کا حج ہے، تبھی آپ کا زکوٰۃ ہے. بنا ایمان کے یہ ساری چیزیں ریاکاری کی طرف چلی جائیں گی، شرک کی طرف چلی جائیں گی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب شرک میں گنتی ہے. اور خالص جب آپ کی عبادت پورے سچے دل سے، کوئی آپ کو کچھ کہے نہ کہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے. آپ کوئی بھی کام جو سچے دل سے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایمان پر چلنے کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے یہاں پر، اے ایمان والوں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو. مدد حاصل کس سے کرو؟ صلاۃ سے پہلے صبر کا ذکر آیا ہے. کتنی امپورٹنٹ ہے یہ لفظ صبر کی، کہ آپ دیکھیں کہ صبر اور صلاۃ، پہلے صبر پھر صلاۃ.
कि सब्र कितनी बड़ी चीज है कि अल्लाह ताला ने एक हदीस में आया कि अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया है हमें। सब्र जो है वो इंसान के लिए एक तोहफा है, और सब्र से हर चीज आसान हो जाती है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जो गुज़िश्ता है जिसकी मैंने तफसीर पिछले हफ्ते की थी, उसमें अज़कुरुनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तो वो ये इसका इंप्लीमेंट कैसे करें इसमें बताया गया यहाँ पर कि जब तक हम सब्र नहीं करेंगे तो ये इस पर इंप्लीमेंट करना, अल्लाह को याद करना मुश्किल हो जाएगा। उसी को बताया जा रहा है, इस आयत से रिलेट किया जा रहा है उस आयत को। वाज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा, अल्लाह ताला हमें याद रखेगा। तो सब्र जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमत, एक नेमत के तौर पर दिया है, तो अल्लाह ताला यहां पर कह रहा है कि सब्र और नमाज, सब्र और सलात, सब्र और सलात हासिल करो। तो अल्लाह ताला की जो नेमत है सब्र, कहां कहां पर, ये सब्र की भी तीन पार्ट्स है सब्र के। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी जो मुश्किलें दुनिया में आती हैं, कि सबसे बड़ी जो ये है तकलीफ जो मौत है, उस पर भी अल्लाह ताला कह रहा है कि सब्र हासिल करो। जाहिर सी बात है, इंसान है, हम जब कोई हमारा प्यारा चला जाता है दुनिया से तो तकलीफ बेइंतहा होती है, हम आंसू बहाते हैं, लेकिन आंसू बहाना बना नहीं है। लेकिन अगर इसी में अल्लाह को, जो अल्लाह ताला की हिकमत है इसके पीछे, अल्लाह को इसमें कुछ बुरा भला बोल देना, क्यों अल्लाह ताला ऐसा कर दिया आपने, इस पर सवाल करना, इससे पाबंदी लगाई गई, इससे मना किया गया है कि एक इंसान की जाहिर फितरत है, कोई प्यारी चीज इंसान की चली जाती है दुनिया से तो बहुत तकलीफ होती है। इस तकलीफ में जो सब्र करता है वो सबसे अव्वल इंसान है। ऐसी हालत में सब्र कर लेना ये सब के बस की बात नहीं। कौन लोग सब्र करेंगे? जो ईमान वाले। सब्र की दूसरी सिफत क्या है कि अल्लाह ताला ने जो फराइज हमें दिए हैं, जो फर्ज काम हमें करने को कहा है, उसमें भी सब्र चाहिए। नमाज पढ़ने में सब्र चाहिए। कैसे भाई? आप देखते होंगे ठंडक में लोग सुबह फजर उठते हैं, फजर में काफी ठंडक रहती है, काफी ठंडक रहती है, और लोग वजू करते हैं। इसके लिए खालिस अल्लाह ताला के लिए। उस ठंडे को बर्दाश्त करके लोग जाते हैं नमाज पढ़ने। गर्मी में रोजा रखना, ये सारी किसकी निशानी है? एक मोमिन की, जो सब्र से काम ले रहा है, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद कर रहा है वो। ये सारे सब्र हैं। और तीसरा क्या? जिन हलाल कामों से अल्लाह ताला ने रोका है, हराम काम, हराम जितनी चीजें हैं सब काफी अट्रैक्टिव होती हैं। ये इसमें काफी अट्रैक्शन देखने को मिलेगा आपको। जितने भी हराम काम है वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे। आपको दुनिया में सबसे बेहतर चीज वही लगेगी कि जो भी हराम काम है वो काफी अट्रैक्शन का काम देता है। सूद खाना हराम है। अब बैंक में पैसा रखा हुआ, पैसा आ रहा है, अच्छी बात है भाई। अगर 5 लाख रखेंगे तो 5,000 रुपया 6,000 रुपया साल में आ जाएगा। क्या जा रहा है हमारा, कितना फायदा है। लेकिन इन सभी चीजों पे जो अल्लाह ताला ने जिस चीजों से हमें मना किया है, उन चीजों पर हमें सब्र कर कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शराब हराम है, लोग शौक से पी रहे हैं। बहुत सारी चीजें, ज़िना हराम है, लोग कर रहे हैं। तो हर एक चीज जिससे अल्लाह ताला ने मना किया, एक मोमिन की सिफत वही है जो सब्र कर ले, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, सब्र करता रहे। तो अल्लाह ताला ने उसे कहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला के साथ होने का मतलब ये नहीं अल्लाह ताला तो सबके साथ है। It doesn't matter wherever you are on the earth, Allah is with you। अल्लाह सबके साथ है। यहां पर साथ का मतलब अल्लाह की मदद है, उसके साथ अल्लाह की मदद मिलेगी। जो इंसान सब्र करे, ईमान वाला, ऐसा ईमान वाला इंसान जो सब्र करे, सलाह नमाज अदा करे, उसको अल्लाह की मदद मिलेगी।
कितनी बड़ी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, एक बात याद रखें, फसयकफिकहुमुल्लाह, अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफी है। There is no one but God, but Allah, अल्लाह के अलावा किसी में वो कुव्वत नहीं है, किसी वो ताकत नहीं है जो कि आपकी मदद कर सके। बाकी सब कुछ दरिया हो सकती है, लेकिन हमेशा हमें अपने रब को याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस आयत से क्या पता चल रहा है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला हमें भी और आप सभी लोगों को सब्र से और नमाज अता करने की तौफीक दे। अब अगली आयत है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला यशऊरून, ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुमको खबर नहीं। इस आयत को पिछले आयत से रिलेट करते हैं। मैंने कहा, मैंने बताया भी था कि जब इंसान की कोई प्यारी चीज छीन जाती है तो इंसान जो है वो अपनी जुबान से कुछ निगेटिव वर्ड इस्तेमाल कर लेता है। जब भी इंसान कोई परेशानी में आता है तो जबान पर कुछ ना कुछ निगेटिविटी फैली रहती है इंसान के, एक जाहिरी फितरत है। हवा में आपका कपड़ा उड़ गया, हवा को कोसने लगेंगे। कोई आपसे कुछ भी ऐसा, दीवार गिर गई या कुछ भी ऐसा हो गया तो आप उस चीज को कोसने लगते हैं। जबकि हदीस में आया ही, ये हदीस हवा वाली जो हदीस है उसमें अल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, इसमें इसकी कोई ये नहीं है। हवा जब चली, आपका कपड़ा गिरा, वो उस पर अल्लाह का हुक्म था, हवा अपनी मर्जी से नहीं चली है। तो और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, अल्लाह की राह में मारे जाने वाले लोग, उनको अल्लाह ताला ने मुर्दा कहने से मना किया। बताइए, एक तो इंसान दुनिया से अल्लाह की राह में चल बसा, उसको अगर इसको इस बात से मना किया गया कि उसको आप मुर्दा न कहें, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। शहादत के भी अलग अलग लेवल्स हैं। कोई पानी में डूब कर मरा, कोई माँ बच्चे को पैदाइश के वक्त माँ का वफात हो गया, कोई मूजी बीमारी, पेट की बीमारी से किसी का वफात हो जाता है। ये सारे शहादत का दर्जा है। लेकिन सबसे अव्वल दर्जा क्या है, अव्वल शहादत क्या है? जो अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम को ऊपर रखने के लिए जिसने अपनी जान हरा कर दी खालिस अल्लाह ताला के लिए, वो असली शहादत है। शहादत का सबसे एक्सट्रीम लेवल है। और वैसे लोगों को कभी भी मुर्दा न कहना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो मर चुके हैं। बरज़ख में जब इंसान मर जाता है तो उनकी जो रूह है वो बरज़ख में जाती है, उसके बाद फिर कब्र में उनको जिंदा, उनकी रूह को वापस लाया जाता है, उनको उठा कर उनसे सवाल जवाब होते हैं। उसके बाद जो शहीद होते हैं उसके बारे में हदीस है कि उनकी रूहें जन्नत में जाती हैं। बाकी तो इल्म गैब है, बाकी का पता नहीं, जो हदीस है उससे बयान कर रहा हूँ कि जो शहीद होते हैं उनकी रूहों को अल्लाह ताला जन्नत में, और अल्लाह ताला उनको रिस्क भी देता है शहीदों को। तो बहुत बड़ा मर्तबा है शहीदों का। अल्लाह ताला हमें शहीदों की जो भी हमारे यहाँ शहीद हुए हैं उनको इन सब चीज़ों से जो भी आयतें पढ़ी तो उन पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हम जो है इन सब चीज़ों से, जो छोटे छोटे गुनाह हैं इनके बारे में कुरान में आयतें आ गई कि उन्हें मुर्दा न कहो। तो अल्लाह ताला इन छोटी चीज़ों से हमें बचाए। यकीनन अल्लाह वो जिंदा है मगर तुमको खबर नहीं। वो जिंदा है मगर तुमको खबर नहीं। अब वो जिंदा है, किस हाल में है, क्या है, कैसे है, किस तरह रह रहे हैं, तो साफ हमें हदीसों से पता चलेगा इसके बारे में। कुरान में कहा गया है कि वो जिंदा है। यकीनन वो जिंदा उस तरह से नहीं है, फिजिकली जिंदा तो नहीं है। वो जिस तरह सब लोग खत्म होते हैं, सबको दफना दिया जाता है, उस तरह उनका भी कफन दफन वो दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन उनका एक अलग मर्तबा अल्लाह ताला ने रखा है।
तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को करना चाहूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह बकरा था और अभी आपके सामने ब्रदर ज़फ़र सर ने सूरह बकरा की आयत नंबर 153 और 154 की मुख्तसर तफसील पेश की और बहुत ही वाज़ेह अंदाज में, बहुत ही जामे अंदाज में उन्होंने बताया कि पहली आयत में कि नमाज और सब्र और नमाज से मदद तलब करो और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसकी तफसीर ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही आ गई थी। वो आयत आपको याद होगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था, आयत नंबर 45 के वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिऊन, नमाज, सब्र और नमाज से मदद तलब करो और बेशक ये बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो खुशू और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है बहुत ही यकीन के साथ उन पे ईमान रखते हैं, जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उनको उसी की तरफ पलट कर जाना है। यानी जिन्हें ईमान बिल गैब और आखिरत का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होता है, जो यूनिक के कॉन्सेप्ट को नहीं बिलीव करते। दूसरी आयत जो आपके सामने पेश की गई कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बेशक वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं, तुम्हें उसका इल्म नहीं। यह आयत भी आपके सामने ब्रदर ज़फ़र ने इसकी मुख्तसर तफसीर पेश की। एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए कि आम इंसान जो है, आम इंसान अगर ख़त्म होता है तो उसके बाद इस दुनिया फ़ानी के बाद आलम बरज़ख में उसका एंट्री होता है, कब्र और उसके बाद उनसे सवाल जवाब और उसके बाद फिर आखिरत के दिन उनसे फिर जो है सवाल जवाब किया जाता है और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो जन्नत में जाएंगे या फिर जहन्नम में जाएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो लोग शहीद होते हैं, जो शोहदा होते हैं, उनके लिए आलम बरज़ख का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कुरान और सही हदीस से साफ साबित है कि जो लोग शहीद होते हैं वो डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू कर जाते हैं, जन्नत में इंटर कर जाते हैं। और ये भी कुरान सही हदीस से साबित है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उन्हें एक स्पेशल रिस्क मिलता है और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रिस्क लेकर वो उनसे सेटिस्फाइड है और अल्लाह उनसे सेटिस्फाइड है। तो ये बहुत बड़ा दर्जा है शोहदा के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और हर वो लोग जो चाहते हैं कि हम अल्लाह के राह में शहीद हों, उन्हें ये इतना बड़ा दर्जा नसीब करें। आमीन या रब्बल आलमीन। इसके बाद दरस हदीस का प्रोग्राम है जिसकी ज़िम्मेदारी ब्रदर श्यान को मिली है। उनके पास भी 15 मिनट का वक्त होगा। मैं ब्रदर श्यान से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मुकर्रर वक्त में दरस हदीस पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन। फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि अवाज़िमुहा व खैरुल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला शैख़िल इमामैनि हुमामैनि हाफ़िज़िल हुज्जतिल अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुग़ीरा बिन बशीर वाल जौफ़ी अल जमानी अल बुख़ारी रहमहुल्लाहु ताला। बाबुल अम्र फ़िल अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान। हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह हद्दसना सुफ़यान इब्न उयैना अन अबी याफ़ूर अन मशरूक़िन अन आइशा अन अबी याफ़ूर अन अबी ज़ुहा अन मशरूक़िन अन आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ला अशरा शद्दद मिज़्ज़हु अय्या लहला व अयक़ाज़ अहला। हमसे अली इब्न मदीनी ने बयान किया, इनसे सुफ़यान इब्न उयैना ने बयान किया, इनसे अबी याक़ूर, इनसे अबी ज़ुहा, इनसे आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया कि जब शब क़दर का वक्त करीब आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कमर बांध लेते हैं और अपने घर वालों को बेदार करते हैं और इस रात को भी शब क़दर की रात को ज़िंदा करते हैं। तो हदीस की तशरीह से पहले इसके बाब की तशरीह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल होता था, इसमें ये बयान होगा। तो यहाँ पर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में, रमज़ान के आखिरी अशरा यानी शब क़दर में अपना कमर बांध लेते थे। इसका मतलब ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल से हट के, यानी जो रोज़ का उनका मामूल था इबादत का,
اس سے ہٹ کے بہت زیادہ وہ اپنا وقت جو ہے عبادت میں لگاتے تھے، اور جہاں پر ہے کہ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ تو اس حدیث کی تشریح سے پہلے بہت سے علماء نے اس پر کراس کوشچن کیا، اشکالات کیا ہے کہ جب آخری عشرہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور اعتکاف میں ہے کہ صرف اعتکاف میں رہیے، ادھر ادھر نہیں جانے کا، جو پھر گھر والے کو جگانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ یہ بہت سے شارحین حدیث نے یہ مطلب لیا ہے کہ کبھی بہت شدید ضرورت ہو، شدت کے ساتھ ضرورت ہو، بہت زیادہ ضرورت ہو، تو انسان گھر والے کو جگا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ جس جگہ وہ رہتے تھے یا اعتکاف کرتے تھے، اس طرف جو ہے ان کا گیٹ گھر کی طرف کھلتا تھا، تو وہاں سے کھڑے ہو کے اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے ہوں۔ تو یہ مطلب بہت سے شارحین حدیث نے بیان کیا۔ اور دوسرا جو مطلب یہ ہے کہ اس رات کو زندہ کرتے تھے، تو اس رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اور اپنا وقت فالتو اور بیکار چیزوں میں نہیں وقت کو ضائع کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرتے تھے۔ اور اس کا ایک یہ شرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو نیند ہے اور موت دونوں جو ہے برابر ہے، نیند جو ہے ایک ہلکی سی موت ہی ہے، اور جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو زندہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی بہت سے شارحین حدیث نے بیان کیا ہے کہ وہ مطلب اس رات سوتے ہی نہیں تھے، اس رات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور نوافل پڑھا کرتے تھے، اور جتنے بھی چیز جو عام دن میں جائز ہے کرنا، وہ چیز سے وہ کنایا کرتے تھے، وہ چیز سے وہ ہٹتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اپنا وقت عبادت میں لگا دیتے تھے۔ اللہ عالم بالصواب، تقبل منا ومنکم صالح الاعمال۔